Hi friends, it's Deepika here. Welcome again back to my channel. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਐਂਡ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। Now let's move to the topic, that is past perfect tense। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? चुका सी, चुकी सी और चुके सन। फाइन, तो टेंस नूं आपां की बोलांगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ओह जा चुका सी, मैं जा चुकी सी, ओह जा चुके सन। फाइन, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। हुण इहदे विच आपां पैटर्न की फॉलो करना है। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ, ਦੈਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਫਾਈਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਔਰ ਹੈਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੇਅਰ ਹੈਡ ਓਨਲੀ। ਫਾਈਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੈਡ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਦੈਟ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ will be placed with every perfect tense। ओके, जिथे भी अपने को परफेक्ट केस आता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क होंदा है, उत्थे आपां हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करांगे। गॉट इट? नाउ हैड हुण कित्थे लगेगा? आपां प्रैजेंट परफेक्ट दे विच हैज़ लगाया सी सिंगुलर नाल, हैव लगाया सी प्लूरल नाल, बट इत्थे हैल्पिंग वर्ब अपने को हैड है, सो हैड आपां बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाल यूज़ करांगे। फाइन, चाहे अपने को ही है, शी है, इट और आई, वी, यू, दे। फाइन, अपने को कोई भी सब्जेक्ट है तो आप की यूज़ करना है ओनली हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आर यू गेटिंग मी? इफ यस then please like this video. Now next move to the examples. Look at first example. The first example is I had finished my work. मैं अपना काम ख़त्म कर चुका सी। That means I is subject here. Okay, had is helping verb, finished is third form of verb, and my work is object here. My is actually possessive pronoun. Okay, ਜਿਹੜਾ किसी चीज़ का possession show करता है, I का possession my show करेगा। Okay, now second example is she had cooked food. उसने खाना पका लिया सी, means past ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ complete हो चुका है। That means tense is past perfect tense. She had cooked food. She is subject here, that is singular in case. As I told you that had both singular and plural ना use होएगा, then third form of verb, then object। Okay, third example is my brother had watered the plants। मेरे भरा ने plants ਨੂੰ पानी दे लिया सी या फिर दे चुका सी। Okay, my brother is subject here, had is again helping verb, then पानी देन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵ ਵਾਟਰ। ਓਕੇ, ਗਿਵ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਡ ਵਾਟਰਡ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਡ ਡਾਈਡ ਬਿਫੋਰ ਦ ਡਾਕਟਰ ਕੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
दैट मीनस द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हुण इत्थे एक गल याद रखना कि जदों भी आपां इत्थे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लैंदे आ तां आफ्टर बिफोर वी विल यूज़ हियर सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मीनस सिंपल पास्ट टेंस। इदां दे कंपलैक्स सेंटेंसिस भी आप अगे जाके पढ़ांगे जो आप कंडीशनल सेंटेंसिस करांगे। ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जदों भी आपां स्टार्टिंग पास्ट परफेक्ट यूज़ करिए टेंस का तो लास्ट आप की यूज़ करांगे सिंपल पास्ट। ओके, ओनली सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी इत्थे। नाउ नैक्सट सेंटेंस इज द ट्रेन हैड गोन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। कहते ट्रेन जा चुकी सी मेरे स्टेशन पहुँचने तो पहला। आप इदां भी बोल सकते हैं मेरे स्टेशन पहुँचने तो पहला गड्डी जा चुकी सी। मीनस ट्रेन जा चुकी है स्टेशन तो मीनस पास्ट दे विच काम कंप्लीट हो चुका सी। ओके, देन वी से द ट्रेन हैड गोन, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर आई रीच द स्टेशन। रीच इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। फाइन, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। Here we will use only not for negation। बाकी पैटर्न सेम रहेगा बट आप हैड दे नाल नॉट यूज़ करांगे negation क्रिएट करने लई। As I told you earlier that negative sentences are those sentences which creates negation in any sentence। Okay, negative sentences ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਵਾਚਕ सेंटेंस भी बोलते हैं। पैटर्न फॉलो करांगे सब्जेक्ट then had then not then third form of verb then object। this is very simple। now look at the examples। first example is he had not rung the bell। उसने bell नहीं बजाई सी। मीनस पास्ट दे विच उन्हें वो काम नहीं किया सी। आप इदां भी बोल सकते हैं ਉਹ ਬੈਲ नहीं ਵਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। that means he had not rung the bell। at first this is subject then helping verb then not for negation and rung is third form of verb of ring। ring rang rung ਹੁੰਦਾ। okay, rung is third form of verb then the bell is object here। now second example is the children had not finished their homework। बच्चों ने अपना काम ख़त्म नहीं किया सी। मीनस पास्ट दे विच उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया सी। फाइन, द चिल्ड्रन इज सब्जेक्ट हियर, हैड इज अगेन हेल्पिंग वर्ब then not is for negation and finished is third form of finish। ओके, आप यूजुअली इत्थे थर्ड फॉर्म बनाने ईडी यूज़ करके पिछे। ओके, देयर इज पोजेसिव pronoun, होमवर्क इज ऑब्जेक्ट हियर। शी हैड नॉट कुकड फूड, उसने खाना नहीं पकाया सी। शी हैड नॉट कुकड फूड, शी इज सब्जेक्ट, हैड इज अगेन हेल्पिंग वर्ब then not is for negation, cooked is third form of cook then food is object here। got it? now next sentence is the train had not left before we reached at the railway station। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ the train had not left before we reached at the railway station। फाइन, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा बट इत्थे आपां की यूज़ किया नॉट, इनू नैगेटिव सेंटेंस बनाने लई। ओके, नाउ नैक्सट सेंटेंस इज यू हैड नॉट टेकन लंच। तुसी लंच नहीं लिया सी या फिर लंच नहीं किया सी। ओके, यू हैड नॉट टेकन लंच। टेक टुक टेकन हुंदा, टेकन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ टुक, सॉरी टेक। टेक टुक टेकन।
Now move to the interrogative sentences. As I told you, interrogative sentences ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਐਟ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਕੇ, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे ये हैड सब्जेक्ट दैन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैन ऑब्जेक्ट लास्ट द क्वेश्चन मार्क। लुक एट द एग्जांपल्स। हैड ही कम एज आई टोल्ड यू एट फर्स्ट देयर विल बी हैड दैन सब्जेक्ट दैन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैन वी विल प्लेस हियर ऑब्जेक्ट। अगर इत्थे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एज इट इज़ इत्थे एंड कर देंगे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे। हैड ही कम कि ओह आ चुका सी। हैड ही कम अगर आप इनू बोलना हो प्लूरल केस नाल, हैड आई कम कि मैं आ चुकी सी या फिर कि मैं आ चुका सी। हैड शी कम। ओके, हैड यू ईटन मैंगो कि तुसी मैंगो खा चुके सी। हैड यू ईटन मैंगो। एट फर्स्ट हैड इज हेल्पिंग वर्ब दैन सब्जेक्ट दैन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हैड ही स्टडीड कि वो पढ़ चुका सी। हैड वी स्टडीड कि असी पढ़ चुके सी। हैड दे स्टडीड कि वो पढ़ चुके सन। ओके, वैन हैड इट रेन। हुण जदों भी अपने को सेंटेंस दे विच WH फैमिली आ जाए। ओके, WH फैमिली फॉर एग्जाम्पल वॉट, वैन, वेयर। ओके, तो आपां हैल्पिंग वर्ब तो अगे प्लेस कर देना है WH फैमिली नूं। ओके, तुहानूं पता ही है कि WH फैमिली नाल भी ऑलवेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक व्हाट इज योर नेम, when are you coming, where is your home। okay, similar to that there is when had it rain। वर्खा कदों होई सी, या फिर आप इदां भी बोल सकते हैं कि रेन किहड़े टाइम ते कदों होई सी। फाइन, when had it rain कुछ नहीं करना, आपां ओनली हैल्पिंग वर्ब दे अगे when प्लेस करना। WH फैमिली का जोड़ा भी मैंबर है वो प्लेस करना आप इत्थे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हाउ हैड वी मैट। हुण हाउ भी आप काहदे लई यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछण लई। हाउ हैड वी मैट असी किद्दां मिले सी। ओके, मतलब पास्ट दे विच मिले सी आपां। हाउ हैड वी मैट। हैड यू ईटन ऑल कुकीज़। Again helping verb then subject then third form of verb then cookies is object here। okay, now this is over guys। ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ फाइंड आउट करनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ एरर्स फाइंड आउट करनियां ने आनियां। ओके, तुसीं देखना होगा किहड़े पार्ट दे विच एरर है। ये एक्चुअली बहुत बेसिक लैवल है हले चल रहा, आप हौली हौली हाई ते भी मूव करांगे। ओके, जिवें जिवें अपने टॉपिक डे बाय डे होणगे आप उहदे अकॉर्डिंग ही एरर्स नूं करते रहांगे। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस वाज ही डोंट लाइक बर्गर। एज आई टोल्ड यू दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच आपां की लगांदे सी नैगेटिव केस दे विच डू नॉट या फिर डज नॉट। ओके, डू कित्थे लगदा सी अपने कोले प्लूरल केस दे नाल ते डज आपां कित्थे यूज़ करदे सी सिंगल केस दे नाल। फाइन, इफ वी हैव ही शी इट दैन वी विल यूज़ हेयर डज। इफ वी हैव आई वी यू दे दैन वी विल प्लेस हेयर डू। Here in the sentence he don't like burger, where is error here?
ही डू नॉट, बट इत्थे की होना चाहिए सी ही डज नॉट। फाइन, ही सिंगुलर इन केस, ही एक जन है तां करके आप इत्थे की लगावांगे डज नॉट। फाइन, ए पार्ट दे विच एरर है दे विच अपने कोले। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस इज दे डू नॉट प्लेज बैडमिंटन। अगेन नैगेटिव केसिस देयर। हुण आपां दस्सिया सी कि जदों भी अपने कोले डू लग जे या डज लगे तो उहदे नाल ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुंदी है। ओके, बट इत्थे की है डू नॉट दे नाल फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है प्ले, नाल की लग्या होया एस। दिस इज़ रोंग। आपां की किया ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होएगी, नाल एस और ई एस नहीं यूज़ होएगा। ओके, दैट मीन्स एरर इज़ इन सेंटेंस, sorry, in part B. Now third sentence is the children doesn't write a letter. Now as I told you that a child is singular in case and children is plural in case. Child ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, children ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, means children is singular, child is singular, children is plural in case. सो वी विल प्लेस हेयर डू नॉट, नॉट डजेंट, इत्थे की लग्या है डजेंट लग्या है, बट इत्थे आपां की प्लेस करांगे डू नॉट। द चिल्ड्रन डू नॉट राइट अ नॉवल। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, डू ही गो टू द ताज महल। अगेन मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इंटैरोगेटिव केस दे विच ऑलवेज डू और डज यूज़ होएगा बिफोर सबजैक्ट। ओके, नाउ इत्थे आपां देखना एरर कित्थे है। डू ही गो टू द ताजमहल, कि वह ताजमहल जांदा है, तो आप की बोलेंगे डज ही गो टू द ताजमहल। ही इज सिंगुलर इन केस, सो वी शुड प्लेस हेयर डज नॉट डू। सिंगुलर नाल हमेशा आप डज का यूज़ करते हैं, ना कि आप डू का यूज़ करते हैं। सो एरर इज़ इन सेंटेंस part A. Now next sentence is does Ram ringing the bell, कि राम बैल वजाउंदा है। Now as I told you, जदों भी अपने कोले do और does लग्या होवे तो उत्थे आपां की यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट इत्थे आपां की यूज़ किया होया रिंगिंग। This is first form of verb plus ing. As I told you that in present continuous we will use first form plus ing, but in present indefinite we will only use first form of verb. मैं तुहानूं कहा सी कि present continuous दे विच आपां verb दी first form नाल ing यूज़ करांगे, but present indefinite दे विच always first form of verb यूज़ होएगी। Okay, then we will place here only ring, not ringing. Fine, error is in the part B part. Okay, now next sentence is we goes to the picnic with friends. असी पिकनिक ते गए अपने फ्रेंड्स नाल, असी अपने फ्रेंड्स नाल पिकनिक ते जांदे हाँ, तो की आएगा we go to the picnic with friends. Okay, we is plural in case, so we should place here only first form of verb. एस और ई एस आप कितने यूज़ करते हैं ओनली सिंगल केस दे विच। ओके, इत्थे की लगेगा वी गो टू द पिकनिक विद फ्रेंड्स। एरर कितने अपने को ए पार्ट दे विच। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक्स गुलाब जामुन अमंग ऑल स्वीट्स। मैं सारिया स्वीट्स के विचों गुलाब जामुन नूं की करदा पसंद करदा हाँ। ओके, नाउ हियर आई इज़ प्लूरल इन केस, सो वी शुड प्लेस हियर ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, not s or es. So error is in part A. Again, do she know me, कि वो मैनू जानदी है। Now she is singular in case, as I told you that does is placed with singular and do is placed with plural. does लगूगा singular नाल, do लगूगा plural नाल। Now she is single in case,
दैन वी शुड प्लेस हेयर डज। इत्थे की गलत लिखा होया ना, डू लिखा होया, आप डज लगाना इत्थे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज डज द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर, कि माली फुल तोड़ता है। हुन गार्डनर इज सिंगुलर इन केस, डज इज प्लेस्ड विद गार्डनर, दैट इज़ करैक्ट। ओके, प्लक्स द फ्लावर, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जदों भी आप डज दा यूज़ करते हैं नाल आप फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करांगे। ओके, फस्ट फॉर्म नाल एस और ई एस नहीं यूज़ करांगे, दैट विल बी रोंग। ये आप सिंपल केस दे विच यूज़ करांगे ओनली, बट डज दे नाल आप फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगावांगे। सो हेयर वी शुड प्लेस डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर। ओके, इत्थे प्लक्स नहीं आंदा, प्लक आएगा। Now last sentence is my mother cook delicious food. Now as you see, my mother is single in case, singular है ना mother, so we should place here s or es with first form of verb. Okay, cook is first form of verb, then we should place here cooks. Okay, my mother cooks delicious food, मेरे माता जी टेस्टी फूड बनाते हैं। गॉट इट। आई होप तुहानूं ये सारी सेंटेंस क्लीयर हो गए होंगे। फाइन, ओके, अज दा लैक्चर इत्थे ही एंड हुंदा है। सो गाइज दिस वॉज लास्ट सेंटेंस ऑफ द शीट एंड आई होप तुहानूं सारे एरर समझ आ गए होंगे। एंड नाउ नैक्सट वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे। ओके, नाल नाल तुहाडी प्रैक्टिस इदां ही सारे टेंसां दी चलदी रहेगी। ओके, नाउ जिहड़े भी इस चैनल ते न्यू ने प्लीज़ जाके लाइक करो, शेयर करो एंड सबसक्राइब करो एंड बैल बटन में प्रेस करो ताकि तुहानूं आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।